हाँ जी, गेटवे टू इंग्लिश चैनल ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਂਸਿਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 62 ਐਂਡ 63 ਨੰਬਰ ਪੇਜਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 63 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 62 ਪੇਜ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਆ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਆ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆ ਹੈ, ਈ ਹੈ, ਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਟੈਂਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ, ਇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ HAS, ਐਸ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਲੂਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਆਈ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਯੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ, ਵੀ ਹੈਵ, ਯੂ ਹੈਵ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੂਰਲ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੋਇਜ਼, ਗਰਲਸ, ਕੈਟਸ, ਡੌਗਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਦੇ ਹੈਵ ਵਨ ਦਾ ਮੈਚ,
शी हैज़ वॉश्ड द क्लोथ्स, ये पॉजिटिव सेंटेंसिस ने। सो इस दे विच सब तो पहला की है, देखो सब्जैक्ट लिखना पैंदा आपां नूं, सब्जैक्ट लिखना हुंदा नंबर 1 ते। नंबर 2 ते हैल्पिंग वर्ब लिखनी हुंदी है। इस दे विच हैल्पिंग वर्ब अपने कोल दो ने, हैव जां हैज़, दोनों विचों कोई एक हैल्पिंग वर्ब इत्थे दूसरे नंबर ते लिखनी है जेकर सेंटेंस पॉजिटिव है इस टेंस का, ठीक है। हैज़ जां हैव विचों एक हैल्पिंग वर्ब इत्थे आएगी, हैज़ आएगी जां हैव आएगी, ये आपां नूं सब्जैक्ट दसेगा। जेकर सब्जैक्ट थर्ड परसन सिंगुलर है तो हैज़ लिखांगे, जेकर सब्जैक्ट प्लूरल है, फस्ट परसन है जां सैकेंड परसन है जां प्लूरल है, उस दे नाल आपां हैव लिखांगे। उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, उस तो बाद ऑब्जैक्ट है तो लास्ट तुसीं फुल स्टॉप यूज़ करना है। क्लीयर। सो ये सी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उस तो बाद नैगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो तुसीं, दे हैव नॉट वन द मैच, शी हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, ये अपने दो एग्जाम्पल्स लिए ने। इस दे विच देखो सब्जैक्ट लिखा सब तो पहला, फिर हैल्पिंग वर्ब आ गई, उस तो बाद नोट इस ते इंसर्ट कर दिता गया, थर्ड फॉर्म ऑब्जैक्ट ते फुल स्टॉप। सेम जो है इस सैकेंड सेंटेंस के भी वही गल है, शी देखो सब्जैक्ट हो गया, सिंगुलर है, थर्ड परसन सिंगुलर है, इस करके हैज इत्थे लगा दिता, इत्थे प्लूरल सी दे इस करके हैव लगाया सी, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस नैगेटिव बनाना है इस करके हैज हैव तो बाद इत्थे नोट लग गया, तो वर्ब भी फिर थर्ड फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट ते लास्ट ते फुल स्टॉप लगाना है। इसका स्ट्रक्चर ये बन गया, देखो अपने को सब्जैक्ट, हैल्पिंग वर्ब, फिर नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उस तो बाद ऑब्जैक्ट है। क्लीयर। जेकर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फ्रेम करना हो, देखो पॉजिटिव तो नैगेटिव कोई बहुता फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ की करना है हैज हैव तो बाद नोट लगाना है, बस इतने नोट आपने लगा देना, नैगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव की करना है, जो हैल्पिंग वर्ब है उस सब्जैक्ट तो पहला लिख देनी है। देखो हैल्पिंग वर्ब पहला इत्थे लगी है, सब्जैक्ट है पहले नंबर पर, फिर हैल्पिंग वर्ब है, हैल्पिंग वर्ब नूं आपां पहले नंबर पर ले जाएंगे, दे तो पहला ले जाएंगे। देखो इत्थे जो हैव है पहले नंबर पर आ गया, फिर दे है, सब्जैक्ट बाद च, सब्जैक्ट उरे सी पहला, हैल्पिंग वर्ब इत्थे सी पहला, दूजे नंबर पर आप इत्थों चक के नूं इत्थे लै गए, ठीक है। उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही सी, इत्थे ही ऑब्जैक्ट सी, ते होर एक चेंज आई है, इत्थे पहला फुल स्टॉप सीगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे विच लास्ट ते मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना हुंदा है, ठीक है। इस तरह इस दे विच देखो सैकेंड एग्जाम्पल देख लो, हैज़ हैल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जैक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जैक्ट आ गया, लास्ट ते क्वेश्चन मार्क लग गया। पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस सी जां नैगेटिव सेंटेंस सी उस दे विच हैज जो है इत्थे सी, ठीक है, क्योंकि हुण सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे विच ध्यान रखना हुंदा आपां ने, जो हैल्पिंग वर्ब है उसका फस्ट पार्ट हैल्पिंग वर्ब का उसनूं आपां सब्जैक्ट तो भी पहला लिख दिंदे हाँ। आ देखो इत्थे चला गया हैज, ठीक है ना, इत्थे सी पहला, इत्थों इत्थे चला गया। क्लीयर। सो स्ट्रक्चर की बन गया, सब तो पहले नंबर पर हैल्पिंग वर्ब लिखनी है, हैज या हैव विचों कोई भी एक, उस तो बाद सब्जैक्ट लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, उस तो बाद ऑब्जैक्ट, लास्ट से क्वेश्चन मार्क। ये सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेटा। सो जेकर वीडियो लाइक नहीं की प्लीज़ लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, ताकि सारे स्टूडेंट्स अपना जो सैकेंड टर्म की तैयारी वधिया कर सकन। सो ये जो है पेपर के टॉपिक आना सैकेंड टर्म के 10th क्लास के, वैसे तो ये सारिया जमातों लिए इंपोर्टेंट है, हरेक क्लास के स्टूडेंट को 10th आने चाहिए ने, ठीक है, पर यह खास तौर पर आप 10th लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सैट एक्सरसाइज है वो 10th की जो अपनी बुक है उस विचों ली गई है। जेकर सेंटेंस नैगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव भी है, फिर की करना है, देखो हैव दे नॉट वन द मैच, हुण की किया देखो, क्योंकि इंट्रोगेटिव है सो हैल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर आ गई, इस दे विच भी हैल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर, दूसरे एग्जाम्पल के भी उस दूसरे नंबर पर सब्जैक्ट लिखना है। हुण सिर्फ की किया आपां ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नोट लगा दिता, तो नोट लग्या कित्थे, सब्जैक्ट तो बाद। कोई भी सेंटेंस ये ध्यान रखियो, नैगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस है जो नावाचक भी है तो प्रश्नवाचक भी है, उस दे विच जो नोट है या नैवर है वो हमेशा ही सब्जैक्ट तो बाद लिखना है आपां ने, ये ध्यान रखियो। तो हैल्पिंग वर्ब हमेशा जो है सब्जैक्ट तो पहला आनी है। क्लीयर। उस तो बाद नोट इत्थे लगेगा, हैल्पिंग वर्ब सब्जैक्ट फिर नोट, फिर मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑब्जैक्ट है, उस तो बाद क्वेश्चन मार्क है। ये स्ट्रक्चर बन गया नैगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का, कि हैल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर बिल्कुल सब तो पहला लिखनी है बिगिनिंग दे विच, उस तो बाद सब्जैक्ट लिखना है, सब्जैक्ट तो बाद नोट या नैवर जो भी है वो लिखांगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट, लास्ट से क्वेश्चन मार्क। सो ये बन गया स्ट्रक्चर नैगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उस तो बाद जेकर WH फैमिली का कोई वर्ड सेंटेंस विच आया होवे वो आपां ने जो है बिल्कुल शुरू दे विच लिखना है, हैल्पिंग वर्ब तो भी पहला आ जाएगा ये वाला, WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए, ठीक है। उस तो बाद सेम स्ट्रक्चर है वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हैल्पिंग वर्ब आ गई देखो,
ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ऑब्जेक्ट है तो लास्ट ते क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। सो ये सी WH फैमिली के वर्ड्स नाल संबंधित, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया कि सब तो पहला पहले नंबर पर WH फैमिली का वर्ड लिखना आपने, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सबजैक्ट लिखना है। पर जे उस सबजैक्ट तो बाद जेकर सेंटेंस नैगेटिव भी है प्रश्नवाचक होने के नाल तो इत्थे नोट भी लिखांगे आप सबजैक्ट तो बाद। फिर मेन वर्ब जो भी है इस टेंस के थर्ड फॉर्म है तो इत्थे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फिर उस तो बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक गल तुसीं ये ध्यान च रखनी है, देखो इस तो बाद आप जो है एक्सरसाइज करांगे, तुहाडी बुक दे विच जो दित्ती हुई एक्सरसाइज उसनूं सॉल्व करांगे। सो जेकर सेंटेंस के शुरू में हू आया होवे, ठीक है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब लिखनी है, हैल्पिंग वर्ब तो बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इत्थे अलग तो कोई इत्थे जो है सबजैक्ट नहीं होगा, जिवें इत्थे सबजैक्ट है, देखो WH फैमिली की गल आपां कर रहे हैं, ये हू इसका एक्सैप्शन है, ध्यान रखियो, ठीक है। WH फैमिली का वर्ड तो आ गया, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब आनी चाहिए सी, हैल्पिंग वर्ब आ गई, उस तो बाद सबजैक्ट आना चाहिए सी, पर सबजैक्ट तो कोई नहीं आया, इत्थे ये नहीं आएगा इस दे, ध्यान रखियो हू वाले सेंटेंस में, ठीक है। उस तो बाद सीधा वर्ब आएगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो नैगेटिव हो सकता है सेंटेंस से, जी नैगेटिव बनाना तो इत्थे नोट जो इत्थे इंसर्ट हो जाएगा विच, क्लीयर। सो एक होर गल ध्यान रखनी है, इस टेंस के वाक्यां दे विच ऑलरेडी, जस्ट, नैवर ये वर्ड भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये यूज कित्थे करने ध्यान रखियो, हैल्पिंग वर्ब तो बाद ऑलरेडी या जस्ट या नैवर ये वर्ड यूज होणगे, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, ठीक है। सो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैल्पिंग वर्ब है, इन्हां दे विचकार जो है ऑलरेडी वर्ड आपां ने लिखना है। इस तरह जे जस्ट आ गया तो जस्ट भी हैल्पिंग वर्ब ਅਤੇ वर्ब की थर्ड फॉर्म के विचकार जो है तुसी जो है जस्ट नूं लिखोगे, ठीक है। इस तरह जे नैवर आ गया हैल्पिंग वर्ब, उस तो बाद थर्ड फॉर्म है, इन्हां दे विचकार जो है नैवर इत्थे लिखना है, ठीक है। इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है। आओ हुण आपां सॉल्व करते हैं तुहाडी जो बुक दे विच दित्ती हुई एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइज सी, ठीक है। इस तो पहला थोड़ा जिहा मैं तुहानूं ये दस दिना, बुक दे विच देखो दिमाग विच रखण वालियां गल्लां, मेन पॉइंट्स, कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये यूज हुंदा कित्थे है, कित्थे आपां इसदी वरतों करदे हां, किस परपज़ लई इसनूं यूज किया जाता है, ठीक है। दिस टेंस इज यूज फॉर द फॉलोइंग परपसिस, ठीक है। नंबर 1 टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन ओवर, ठीक है, उस एक्शन नूं दर्शाउण लई जो हुणे हुणे पूरा होया है, ठीक है, उस तरह के काम नूं दर्शाउण लई आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वरतों करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिस तरह आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं मेरा काम पूरा किया है, मतलब हुणे ही पूरा होया है काम ये, ठीक है। शी हैज़ ड्राफ्टेड द एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन जदा खरड़ा तैयार किया है, हुणे ही किया खरड़ा तैयार, ठीक है। सो इस तरह ये ध्यान रखियो, एक पॉइंट यह है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट देखो, टू डिनोट अ पास्ट एक्शन, एक्शन पास्ट का है, द रिजल्ट्स ऑफ विच आर स्टिल प्रेजेंट, परंतु उसका रिजल्ट हुण भी मौजूद है, उस तरह के एक्शन लिए भी आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वरतों करते हैं। देखो बेटा, ही हैज़ ओपनड अ न्यू शॉप, उसने एक नई दुकान खोली है, दुकान अजे हुण भी खुली है, ठीक है। खोली तो पहला हुण उसने दुकान था, ठीक है, नवी दुकान उसने शुरू की है, पर दुकान हुण भी चल रही है ना, ठीक है। सो इस करके जो है रिजल्ट हुण भी मौजूद है। सो इस तरह के एक्शन नूं भी आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच बनाउंदे हां, ठीक है। जिस तरह होर एग्जाम्पल्स देख लो, शी हैज़ पासड द MA एग्जामिनेशन, आई हैव लिव्ड देयर फॉर 6 months, ठीक है। इस तो बिना एडवर्बियल क्लोजिज जिन्ना जो वैन, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, ठीक है, इन्हां तो शुरू हुंदी होवे, ठीक है, उत्थे भी उस तरह के वाक्यां नूं भी आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे विच बनाउंदे हां। जिवें देखो, एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड दिस जॉब, ठीक है, ये एडवर्बियल क्लोज है ना, एज सुन एज, ठीक है, ये एडवर्बियल क्लोज है, इसनूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे विच फ्रेम किया। अगला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट दे विच है, ठीक है। इस तरह आई शैल रिंग अप आफ्टर आई हैव टॉक्ड टू हर, आ देखो आफ्टर तो बाद ये जो है एडवर्बियल क्लोज है, इन्ने नहीं, ये एडवर्बियल क्लोज नूं आपां बनाया किस दे विच, परफेक्ट टेंस दे विच, क्लीयर। हुण देखो तुहाडी एक्सरसाइज नंबर 4, वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 10 years, नो, इस दे विच वर्ब दित्ती आपां नूं नो, ठीक है, फिल करना है, देखो भी की आएगा। आपां नूं पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे विच इसनूं करना है, ठीक है, उस दे अकॉर्डिंग यूज करनी है वर्ब। सो पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, पहली गल तां ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे विच थर्ड फॉर्म आपां हुण डिस्कस करके हटे हां, ते नाल हैल्पिंग वर्ब हैज हैव विचों एक हैल्पिंग वर्ब लगनी सी। सो देखो वी की है, प्लूरल है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह लीए फस्ट परसन प्रनाउन भी है,
ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ हैव ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ हैव known ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੱਥੇ हैव known, we have known each other for the past 10 years। क्लियर। अगला देखो, द अपॉइंटेड डे डैश कम वर्ब दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लीयर है, बिल्कुल अपन पता ही है। तो हैज हैव विचों एक हैल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इस हैज लगेगा बेटा, हैज हैल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्यों? क्योंकि द अपॉइंटेड डे ये सिंगल है, ठीक है, जो निश्चित दिन सी, ठीक है, वो एक दिन की गल हुई है और ये सिंगुलर है, थर्ड परसन सिंगुलर है, इस करके हैज लगना है। तो इत्थे तुसी फील करोगे इत्थे हैज़ कम, ठीक है, द अपॉइंटेड डे हैज़ कम। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डू यू नो वट डैश टू हिज लैग, ठीक है, वट हैज़ हैपन्ड आ जाएगा, ठीक है, उसकी लत्त नूं की होया, उसकी लत्त नूं की होया, ठीक है। सो की जो है वो सिंगुलर है, इस करके इत्थे हैज़ हैल्पिंग वर्ब लगनी है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म हैपन्ड, ठीक है, वट हैज़ हैपन्ड टू हिज लैग। नैक्सट देखो, आई दे नाल हैव हैल्पिंग वर्ब लगूगी, वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज करनी है फिनिश्ड, इत्थे आ जाएगा आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी देखो ध्यान रखना, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ये वाला। क्लियर। नैक्सट देखो, आई डैश यू, आई नाल किहड़ी हैल्पिंग वर्ब लगनी है, हैव, क्योंकि फस्ट परसन प्रनाउन है ये, आई तो वी फस्ट परसन प्रनाउन है, फस्ट परसन प्रनाउन नाल हैव हैल्पिंग वर्ब लगाउणी है, आपां हुण डिस्कस कीता उपर, ठीक है। सो इत्थे आएगा हैव, ते वर्ब डिसीव है, नाल नैवर भी लग्या होया, यानी कि नैगेटिव सेंटेंस बनाउणा ये, सेंटेंस नैगेटिव है। तो किस तरह बनेगा, आई इत्थे फील करोगे तुसीं, इत्थे आई ते यू दे विचकार की फील करना है तुसीं, हैव नैवर डिसीवड, ये फील करना है, हैव नैवर डिसीवड, ठीक है, इत्थे फील करना है तुसीं ये। क्लीयर। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, ठीक है, मैं दस के हटाया पहले, उपर पर डिस्कस किया भी नैवर तो आ जो है अपना जस्ट ऑलरेडी, ये हैल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के विचकार इन्हां वर्ड्स नूं यूज करना है, ठीक है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस सी। नैक्सट देखो, आई शैल गो देयर आफ्टर ही डैश हिज होमवर्क, आफ्टर ही सिंगुलर सब्जैक्ट है, हैज़ आएगी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि थर्ड परसन सिंगुलर हो गया, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, यानी कि इत्थे लिखोगे तुसी हैज़ फिनिश्ड। दैन वाई दे है, देखो दे प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाल हैव हेल्पिंग वर्ब लगनी है, सो हैव इत्थे लगेगी, हैव हेल्पिंग वर्ब इत्थे यूज करनी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है, सब्जैक्ट तो पहला हैल्पिंग वर्ब लगनी है, उस तो ही पहला WH फैमिली का वर्ड आया हो, इस सब तो पहले नंबर पर लगता है, WH फैमिली का वर्ड आ गया, फिर हैल्पिंग वर्ब आ गई, उस तो बाद सब्जैक्ट आ गया, सब्जैक्ट तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इत्थे, ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म गोन है, ठीक है, लास्ट ते क्वेश्चन मार्क लगे ही होया, यानी कि सेंटेंस बन गया वाई हैव दे गोन देयर। नैक्सट देखो, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो सेंटेंस आपां नूं इंट्रोगेटिव कह दिता बनाने वास्ते, तो हैल्पिंग वर्ब सब्जैक्ट तो पहला लगेगी, तो फिर सब्जैक्ट आएगा, सब्जैक्ट तो बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हुण इत्थे आपां नूं वर्ब दित्ती है हैव, ठीक है, हैव दी थर्ड फॉर्म की है हैड, ठीक है, इत्थे ये तां होगी थर्ड फॉर्म हैड, तो हैल्पिंग वर्ब हैज़ इत्थे लगना, HAS है बेटा, ये शी सब्जैक्ट है ना, शी थर्ड परसन सिंगुलर है, थर्ड परसन सिंगुलर नाल हैज़ हैल्पिंग वर्ब लगानी सी आपां ने, शुरू च लग गई क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव दी थर्ड फॉर्म हैड होंदी है, ठीक है, उस तो बाद ऑब्जैक्ट हो गया तो क्वेश्चन मार्क लग गया। क्लीयर। लास्ट सेंटेंस है आई फर्स्ट परसन प्रनाउन है, हैव हैल्पिंग वर्ब यूज होएगी, ठीक है, सी वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, तो विचकार लग जाएगा नैवर, ठीक है, नैवर सीन, है ना, आई हैव नैवर सीन द ताज। सो ये सी तुहाडा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा। बाकी इस बुक दे विच जिन्ने भी तुहाडी एक्सरसाइजिज ने टेंस नाल संबंधित सारियां इस चैनल ते आपां कवर कर रहे हैं, ये अपनी तीजी वीडियो है, ठीक है। इस तो बाद होर भी जो टेंसिज बचे हुए हैं, ठीक है, आपां सारे इस चैनल ते कवर कर रहे हैं। इस तो बिना होर भी जो तुहाडी ग्रामर है, नॉन फाइनाइट वगैरह है, वो भी आपां कवर करांगे। बाकी टेंस ते नरेशन ये वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल ते पईयां ने, तुसीं प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट दे विच, ठीक है, नरेशन के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, टेंस के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, तो चेंज द वॉइस के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, उत्थों तुसीं अपने वो टॉपिक्स होर भी डिटेल दे विच क्लीयर कर सकते हो। इत्थे मैं तुहानूं ब्रीफली दस्सिआ, ठीक है, टेंसिज, तो जेकर टेंसिज होर डिटेल दे विच करना है तो टेंस वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लो एक बारी, ठीक है बेटा। सो वीडियो नूं लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, तो जेकर चैनल ते बेटा नवे हो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।